Yes, Mr. Varun. Hi, hello everyone. Hi, I'm Ab- audible. ab- Yes, absolutely, absolutely. So, Hey. can we start? Yeah, sure. Yeah, sure, sure. Okay, Hi okay, everyone, hello everyone. Good morning. okay. Good morning. So, Good morning, everyone. good morning, Mr. Varun. Good morning, everyone. Uh, Business plans are like roadmaps. It is possible to travel without one, but will only increase the likelihood of getting lost along the way. And on your journey towards the business plan competition that many of you have opted for, to tell you the realities of business and its planning, we have a very special guest here today with us, Mr. Varun Awasthi, owner Shame Enterprises. And he's here to share his fabulous journey and experience with all of you. And that will surely help you understand few critical elements about the world of business. I would like to take this opportunity to introduce Mr. Varun to all of you. Dear students, Mr. Varun, after completing his mechanical engineering from Bhopal, went to pursue his passion in management and got awarded his MBA degree from Symbiosis Institute of Operations Management, Maharashtra. In his professional journey, Mr. Varun has also worked with elite organizations like Honda Motorcycles and Scooters India Limited, Deloitte Consultancy India Private Limited, and KPMG as well. In 2016, Mr. Varun started his own venture, Shamay Enterprises, and he is making Bhopal fit with his brand, The Bike Studio. Mr. Varun is also a member of BNI, that is Business Network International, which is world's largest business networking and business referral organization. He has been on multiple national platforms presenting and analyzing business ideas. And for today's session, we can surely say that he is someone who will add immense value to all of your lives. On behalf of IPER, I welcome you, Mr. Varun Awasthi, on this particular e-platform. Without Thank you so wasting any more time, this session is all yours, sir. Please. great. Thank you so much, sir, for such a lovely introduction. Although even I was not aware of all these things. But yeah, true, guys. So just to brief that I have a 7 years of working experience in corporates, and for last 5 years I'm handling this business, Sham Enterprises. A small brief on what we do in Sharma Enterprises is it started with a bicycle store known as Bike Studio. We started with that, and then slowly we expanded it to an wholesale business of bicycle spares and services. And now we are entering into sports. So that's the life cycle of our business as of now, and we soon will be launching our e-commerce website for sports and goods. So it's sports include all sports and cycling as well. So we'll be launching that soon. So I just got to know that a lot of teams are there, like 42 teams have been participating or competing for business plan, and you guys need some kind of guidance from me, and that's why I'm here. So I would like one or two people to tell me what business plan you guys are making or how you are making it, so that I know like what are your challenges or what challenges you are facing. If you can guys just help me out with, so I can just tell you or support you in that direction. So anyone who will try to volunteer and tell me what business plan you guys are making. Yes, Manpreet, please go ahead. Yes, sir. Good morning, sir. Mm. Actually, our team has a basic plan, like what we have a basic idea, like what we are going to do or what we are going to follow. The basic plan, we have the idea, but we don't know how to approach to the main plan, or you can say how to approach to make it realistic or execute the idea. Like, Okay, so Manpreet, what is your idea? sir, will it be suitable to share my idea here? Like, it Yeah, is a definitely. Never ever think about that. First thing, no one is going to steal your idea. Idea is there. A lot of people here who have a lot of idea. Execution is the main part. So don't think about that. You can definitely tell me what is your idea, or you can tell me just the product that you're looking for. Just because sir, why I'm asking so many or everyone is that every product has a different product life cycle, and based on that only you can define what realistic business plan will be. So, okay, so let leave aside. Let me give you this on my product. So, my product is basically a bicycle. Okay. yes,
So I understand what your the thought process is, Manpreet, is that you need to understand how we will define business plan. So can you help me with the what are the various parameters that you're looking for in business plan, or anyone else who can help me with what are the various parameters that you guys are looking for to make a realistic business plan? Hmm. Anyone who wants to just tell me what are the parameters that you're looking for? Sir, we are approaching service we are not creating a product. We are making a plan related to service, providing services. Okay. So what I'm asking here is for that services, what are the parameters? As in parameter, as in see, in business plan there are a lot of things. There's sales, there's profit, there's margin, and a lot of product. There's like customers. So, for example, if you talk about service, in service you will be directly looking into the number of penetrations. So if I talk about penetrations, basically number of clients that you're going to handle. So there are a lot of services. So I'm just asking you those parameters. If you have any idea, actually, should I go ahead with my product? So okay, I understood. I will tell you the brief about my product, and then you can guys correlate with it. And as Manpreet told me about the services, so I will touch base some services also. So what happens is when we make a business plan. So when I started with a bicycle retail store, so the business plan was to understand the market size, and there are a lot of ways we can understand the market size, and one of those ways is to understand the population size. So that is the best because you cannot go everywhere, every shop and understand कि यार कितना market बनेगा or what is the average sale or what is that. So that is one way of doing it. It's like you go to your competitors and you talk to them as a neutral that okay, what is your market size or how much cycle you sell on a monthly basis or something like that. But that is something which will give you a very vague figure. Another way is to understand it on the population size. So, for example, in Bhopal, there is around 20 to 20 lakh population is there, and we take it as a guesstimate as to that the number of person in a family will be 54. So that will bring into 4 or 5 lakh, families or something like that. And then you boil down into your target market. Okay, if there's 4 or 5 lakh, what is the average income of the per family, and who is your target market? And then you come down to okay, that around these are the numbers that we are looking for in the cycling industry. So that's how I got into like okay, this was my business plan that I was targeting something close to let's say 100 cycles a month, and then I said okay, if this is 100 cycles a month is what I'm going to achieve. Will I achieve on day one? That is not possible, guys. So understand this: day one you will never achieve 100 cycles. That is your target market, okay? And then the actual there is a difference in target and actual. So what you do is you try to understand that if your 100 is your target, then you will start somewhere on the front that very vaguely that what in business we do is we take it as okay, it will be something close to 20% of the target you're going to achieve from the starting point of view. So that is something which is with every business. Don't worry, I'm working, I'm looking, I've always, every week have a word with around 40-45 business owners, and they all have this concept that if we are targeting something close to 100 and we will achieve something close to 20 on our initial basis, because there are a lot of hindrances that happens that few will not trust you. Those who trust you may already have a loyal customer base somewhere else. So you need to take that, okay, you are a startup and you need to enter into the market. So that is how you understand the market size. Okay, so you start with 20, then you take a gradual increment, but don't take it very optimistic gradual increment. Take a pessimistic gradual increment, because anything good that going to happen good is going to happen good, but you have to be ready for the worst. Okay. So you need to take a very pessimistic. For example, if the industry growth in your industry, if the growth is per year is 10%, you should plan it for a 5% growth. You should not plan for 10% growth. If you are planning for a 5% growth, 10% growth will always help you. But if you are planning for a 5% growth and you are achieving that 5%, you will be on a very safer side. To plan for a 5%,
growth. Okay. So once your sales plan in your business plan, go for a pessimistic growth, whatever industry that you're looking for. If your service industry is going by 20%, take it 10%. If your product industry is going for 2-3%, take 1%. So whatever you are looking for, you should always have a pessimistic approach that, okay, in the worst case scenario, this is what I would achieve. This will be my sale. And this is the revenue that I'm going to generate. So another aspect that I am not sure is like, are you guys aware of how you calculate your sales into profit? If anyone can help me with that. Anyone can tell me. Come on, guys. We are 240 people. Are you guys aware of how you calculate for sales into profit? Come on, guys. कोई भी. After expecting all the expenses and the salaries, the remaining what we get is our profit. Okay, so subtract the sale price from the profit. So, beta, how are you going to understand the profit, Harsh? See, how you will calculate profit is one. Chitransh, okay, can you tell me? So you told me that your sales price minus the expense. Will your sale price is okay? So is your sales price is directly what you are earning, or so understand this? There's two different aspects, and most people are not aware of it. Is sales price is if you are into product, for example, then there is a sales price, and in that sales price there is certain percentage of margin that you are earning, and in that margin you need to cater your expense. Okay. You won't be catering expenses from the sales price. So मैं आप लोगों को दोबारा एक चीज को बहुत आराम समझाता हूँ एक नॉर्मल लैंग्वेज में कि if you are selling a product which is of ₹100, that is not your income, right? Your income will be 100 minus the purchase of your purchase price. मान लीजिए अगर मैंने कोई सामान खरीदा है 80 में and if I am selling it at 100, then 20 rupees is my margin. And that in that 20 rupees, I need to cater my expenses. Am I clear? Or is there any doubt? So is this clear, right? So don't when you're making a sales plan or when you make a financial plan, don't go with key sales and then you will start calculating your expense and then you say that this is my profit. No. So and also there are two types of profits. One is PAT, one is EBITDA. Are you aware of that? Do you aware of profit after tax and earning before tax? Are you aware of that? Yes, sir. Yes, sir. Yes. You guys are aware of it. Great. So tax comes later. Okay. So don't take GST or any other tax into your expenses. Never take that. Your expenses is directly proportional to only your variable costs. So all your expenses only your variable costs. There is one aspect which is like how you cater to fixed costs. So how you cater fixed costs in your expense? If you guys are aware of it, how you cater your fixed costs? So will you please explain the meaning of the terms? Profit volume ratio. Go ahead, please. So Yes, sir. So we can calculate it by profit volume ratio. In that we can calculate all the profit, sales, and your fixed income. Okay. And Chitraj, what were you saying? Actually, I'm not aware with the term, so I just tend to explain. Okay. So there are two types of expenses. Which how Shreya explained it. It's like there is a profit. There is a fixed cost and there is a variable cost. Variable cost is something which you have, which will be incurred every monthly, and fixed cost is something which you incur once and then you don't cater to it. So how you tackle with the fixed cost is so if your fixed cost is something X, and you have to first study your product ki life cycle. Okay, so in product life cycle there are 4 phases. Every product life cycle has. There is an introduction, there is a growth, there is maturity, and there is a decline. So you need to cater firstly what is your introduction strategy. Okay, in introduction you don't take profit as a very serious aspect. In introduction your main is penetration. So how you take it is
if you're aware of this IRR, there is something known as internal rate of return. If not, it's a very simple concept. You put your sales, you put your profit and everything into into this IRR calculator, and it gives you the return. Okay, कि इतने साल में आपको आपका जो investment है that will come back. So you divide your fixed expenses as per that. Okay, if 5 years is what your IRR is, then your fixed cost of, let's say, 1 lakh will be divided into 5 years. So that says that in 5 years, whatever investment you are doing, you will get your return in next 5 years. And after that, all your profit is all your this cost is your pure profit. तो इन लेमन टर्म में तुम लोगों को बता देता हूँ. जैसे मैंने 1 लाख रुपए आज लगाए, अब मेरा एम ये है कि भैया वो एक लाख रुपए लगाए तो मेरा आज प्रॉफिट मान लीजिए महीने का आ रहा है 1000 रुपए. So what will I say? Will I say my profit is 1000? No. What will I say is कि 1000 रुपए जो मैं जब मेरे को जब 100 मंथ्स हो जाएंगे तब मैं अपना 1 लाख रुपए जो आज लगा रहा हूँ मैं निकाल लूंगा. So that is my aim as a business owner. My aim is कि पहले मैं वो लगाऊं, फिर उसके बाद जब जितना भी मेरा जो भी मैं हर महीने का अगर 1000 रुपए कमा रहा हूँ, that is my profit. So that is your introduction phase. Understand it. कि you first try to get the money, get your money out of your business. कि भाई मैंने जितना आज लगाया है मुझे वो पूरा पैसे पहले कब तक निकल जाएगा. उसके बाद then there is a growth phase because there will be two things. One is you will be settled in the market. Another thing will be कि you will be capable enough, or your clientele will be capable enough to trust you. So you will definitely start getting business. Then there is no so in growth phase you don't run behind customers to get your customers. The customers are already there. You're just trying to provide them a good service. And then there's a maturity phase where you don't do nothing. So then the business is on auto stage and you simply enjoy it. And then comes a decline phase where you take a decision whether you want to run this business or not. So understand this, decline phase में ऐसा होता है कि you plan to either expand or you plan to shut it down. And when maturity phase is something where you start achieving your target on a monthly basis. So for example, अगर आपने 100 साइकिलों का अगर मैंने टारगेट रखा है और अगर मैं अब हर महीने 100 अचीव कर रहा हूँ for next 6-8 months or 12 months, so that is the indicator that okay, my business is now into a maturity stage and I have to stop. Either I have to stop this business or I have to just or I have to plan for an expansion. कि भाई अब कुछ नया करना पड़ेगा, otherwise there will be a phase where I have to start where my sales will start going down and my business will collapse. There are a lot of cases there in that you will see day to day that there's someone who was doing very good in the business and suddenly he is not into the existence. So वो case वही होता है कि लोग अपने extension को plan करते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं चुपचाप, वो बोलते हैं ठीक है, if I am getting this much business I am happy with it. So there is a gradual fall happens क्योंकि technology changes, scenario changes, people के expectations change हो जाती हैं बहुत चीजों में, and if you are not in the market and you are not along with them, तो वो ultimately आप behind हो जाते हो अपने competitors से, and then competitors start getting your business and you start gradually declining. ये एक phase होता है. तो जब आप लोग business plan बना रहे हो तो पहला जो आपका fixed cost रहेगा ना, वो fixed cost जब तक नहीं निकलता तब तक आपका कोई profit नहीं है. ये आप लोग को समझना पड़ेगा कि आप लोग सिर्फ अपना जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो निकाल रहे हो, उसके बाद से आपका जो है वो प्रॉफिट आना शुरू होता है. तो दैट इज योर रेट ऑफ रिटर्न कि आप अपने एक आईआर के एक लेवल तक जाके शांत रहते हो, उसके बाद आप कहते हो कि हाँ सर देखो मेरे को ये है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू एवर पिच टू एन इन्वेस्टर, तो वो यही देख रहा होता है कि भाई आपके बिजनेस में आप पहले तो ये देखता है कि भाई आप कितने केपेबल हो, कितने टाइम से आप यहाँ पे हो, एंड दूसरा वो ये देखता है कि यार आप अगर मैं आपको आज पैसा देता हूँ तो वो पैसा आप मेरे को कितने टाइम में निकाल के दोगे. तो आपके बिजनेस प्लान को मैं जब भी आप वो बनाओ तो वो माइंडसेट से बनाना कि यार मेरे को इसका रिटर्न कितनी जल्दी आएगा, एंड दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन टू एस्पेक्ट. देखो दो तरीके से इसमें वो होता है, आप निकालते हो, either you cater to high mass with low margin or you cater to more margin with low mass. So both are good. There is nothing bad in it. Don't think कि यार मैं अगर मेरा मार्केट साइज ही बड़ा नहीं, अगर आपका मार्केट साइज बड़ा नहीं है तो आपका मार्जिन बड़ा होना चाहिए.
अगर उसको आप फिर एक नीश प्रोडक्ट की तरफ से उसको लॉन्च करोगे, और अगर आपका मार्केट साइज बहुत बड़ा है तो आप फिर लो मार्जिन पे खेलते हो। जैसे ग्रोसरी स्टोर्स, दे वर्क मोस्टली ऑन लो मार्जिन, वेयर इज समवन लाइक इंटीरियर डिजाइनर्स और समथिंग, दे वर्क्स ऑन हाई मार्जिन। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। तो आप अपने उस मार्जिन को समझो, अपने उस प्रोडक्ट के मार्जिन को समझोगे। मार्जिन इज समथिंग विच इज सेल्स माइनस दी योर परचेज प्राइस, सो दैट इज योर मार्जिन। उस मार्जिन को आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज योर इनकम। तो इवन इन सर्विस इंडस्ट्री, आई एम नॉट श्योर, बट if you are talking about an IT industry, IT currently works on per hour basis. Okay, so their employee cost is calculated as per the per hour calculation. For example, if you have a software developer, there will be a per hour rate. Now the per hour rate is also calculated in the same manner only. मैं कहता हूँ जैसे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 20 रुपए घंटा है, तो उसका कैलकुलेशन भी ऐसे ही होगा कि भाई उसमें कंपनी उसको कितना दे रही है। लेट्स से कंपनी उसको 8 या 9 रुपए घंटा दे रही है, उसका कंपनी का अपना क्या कहते हैं मैनेजमेंट खर्चा कितना आ रहा है, एडमिन खर्चा कितना आ रहा है, और उसके हिसाब से उनका कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो 4-5 रुपए वो जो भी पर आवर बेसिस पर प्रॉफिट रखते होंगे, दैट इज देयर मार्जिन। सो वो उस मार्जिन पे काम करते हैं। Any other question that you guys you want to ask me, or I'm on a right track? You guys are understanding what I'm saying? जी शिवांश जी, आपने हाथ खड़ा किया, बताइए। शिवांश, हाँ मनप्रीत बोलिए। Sir, as you talked about certain parameters that we need to figure out in making a business plan. So, like, sir, in the notice, we have to work on certain parameters. Like, we need to find the market size, the projected growth. We need to think about the competitors, the RMS, and certain trends as well. So, like, sir, what should be the way or the path to carry on this? Like, from the basic idea to a fully fledged business plan, the bridge between these both, like what need to figure out? चलो, so I will tell you the starting से कैसे करते हैं. So one first thing is you understand your market size. Okay, so market size understand करने के बहुत सारे आपने बहुत सारे रीजन, वो मार्केट रिसर्च की बुक खोलोगे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट वेरी सिंपल मेथड आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस कि यार यू टेक योर मार्केट, लेट्स से एग्जांपल मेरा मार्केट भोपाल है, तो व्हाट आई विल से कि कितने पॉपुलेशन है, 20 लाख की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब वो 20 लाख की पॉपुलेशन तो मैं पूरी एक बार में मैं नहीं कैटर कर सकता। मैं कहाँ बैठा हूँ, अब जैसे मेरा स्टोर इज सिचुएटेड इन चूनाभट्टी, तो लेट्स से मैं फिर ये समझूंगा कि वो 20 लाख में मैं कहाँ बैठा हूँ, चूनाभट्टी में। तो चूनाभट्टी में कौन कौन आ सकता है, चूनाभट्टी का एम्प्लॉय आ सकता है, कोलार का आ जाएगा, शाहपुरा का आ जाएगा, एरेरा का आ जाएगा। व्हाट इज दी पॉपुलेशन साइज ऑफ दिस एरिया? सो लेट्स से 3 to 4 लाख लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। दैट इज माई मार्केट साइज। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कि उसके बाहर के लोग हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ सकते हैं, वेरी वेल एंड गुड, नहीं भी आ सकते। तो इस तरीके से 3-4 लोगों की पॉपुलेशन है, फिर मैं ये समझूंगा कि वो 3-4 लोग हैं, 3-4 लाख लोग जो हैं मतलब उनकी फैमिली होगी, तो वो चलो 4 लाख अगर लोग हैं तो फैमिली अगर 4 की है तो 1 लाख फैमिली को मैं केटर कर रहा हूँ। उस 1 लाख फैमिली में फिर मैं देखो ये सब गूगल करना पड़ता है, यू कैन डेफिनेटली गूगल इट एंड वी कॉल इट गेस्टिमेट टू बी वेरी फ्रैंक। तो आप इसको गूगल करोगे तो यू अंडरस्टैंड कि यार वो 1 लाख लोगों की में एवरेज इनकम कितनी है भोपाल की। तो लेट्स से 14-15,000 लोग की एवरेज इनकम है। उसमें अगर आप ये सब गूगल में रिसर्च भी करोगे तो क्या अंडरस्टैंड, अभी आप लोग कहीं जा भी नहीं सकते मार्केट रिसर्च करने, तो आपको जो भी करना है ऑनलाइन बैठकर करना है। तो ऑनलाइन में आप देखोगे तो उन लोग ये भी बता देते हैं कि भाई इतने परसेंट लोगों इज अबव दिस इनकम ग्रुप, इतने परसेंट इज बिलो दिस इनकम ग्रुप। एवरीथिंग, एवरी डेटा इज अवेलेबल, नॉट अ बिग डील। तो यू टेक वॉट एवर, जैसे मैं जो हूँ मैं मोस्टली इंटरनेशनल ब्रांड से डील करता हूँ, तो आई नो कि एक सर्टेन इनकम ग्रुप के ऊपर के लोग ही मेरे पास आएंगे, तो मैं वो लूंगा। तो लेट्स से वो 50,000 लोग ऐसे लोग हैं जो मेरे एक टारगेट ऑडियंस है। अब वो 50,000 में से हर 50,000 तो साइकिल लेगा नहीं, तो भाई कितने लोग लेंगे? तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आप एक पेसिमिस्टिक वो लेते हो कि आप कहते हो यार वो 50 में से लेट्स से 5,000 लोग ही होंगे ऐसे, जो 10% ही लोग होंगे जो मेरे से साइकिल लेना पसंद करते या जो साइकिलिंग करना पसंद करेंगे। तो वो 5,000 में से मैं कहूँगा चलो ठीक है, ये 5,000 अब मेरे 5,000 फैमिलीज जो है ये मेरी टारगेट मार्केट है। अब ये 5,000 फैमिलीज में से मैं कहता हूँ कि भाई इसमें से हर बंदा तो मेरे से लेगा नहीं और हर दिन तो मुझसे लेगा नहीं,
देयर विल बी सम लेट्स से कि एक बंदा साल में एक बार कोई साइकिल ले, तो मैं वो 5,000 को पहले 12 में डिवाइड करूंगा। तो लेट्स से आगे वो 500 की बात कर लेते हैं, 500 लोग हैं जो हर महीने या ले सकते हैं। अब क्या है कि मैं 500 का मैं उसमें भी आई एम गोइंग टू टेक अ पेसिमिस्टिक कि भाई उसमें अब मेरे कॉम्पिटिटर इस एरिया में कितने हैं, तो लेट्स से 3-4 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आई डिवाइड देम बाय लेट्स से इक्वली डिवाइड कर देते हैं कि भाई सबका इक्वल मार्केट शेयर है। 100 एक मोटा मोटा मेरा टारगेट मार्केट आया। व्हाट आई वाज टेलिंग यू बिफोर वो यही था कि भाई मेरा 100 का हर महीने का एक टारगेट मार्केट मुझे पता चल गया कि यार ये 100 तो मुझसे लेना चाहिए, दैट शुड बी माय स्टैंड। बट क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है बिजनेस, अंडरस्टैंड दिस इज अ प्रैक्टिकल पॉइंट। और अगर आप लोग टेक्सटाइल एनालिसिस जानते होंगे तो उसमें पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल सिनेरियो करके एक चीज होती है और उसमें सोशल सिनेरियो भी होती है। तो ये तीनों चीज यहाँ पे इम्पैक्ट करती हैं कि भाई कोई भी स्टार्टअप को एकदम से ट्रस्ट नहीं मिलता कस्टमर, आपके कस्टमर से या क्लाइंट से। they take lot of time, a client और customer take lot of time to trust you, और जब तक वो ट्रस्ट नहीं करेगा तब तक वो आपको बिजनेस नहीं देगा। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि भाई इसको बहुत पेसिमिस्टिक बोलो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ये 100 तो मेरे को मिलना चाहिए, दैट शुड बी माय टारगेट एनी डे, बट हाँ चलो ठीक है मैं अभी 20% पे काम चला लूँ, तो मेरा 20 लोगों का महीने का टारगेट बन गया। If I'm not achieving this 20 customer, then there is a problem. If I'm achieving this 20 customer, then my calculation is correct और मैं उसको वे फॉरवर्ड ले सकता हूँ। अब आपने ये 20 ले लिया, अब इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे कि लेट्स से ये 20 लोगों का टारगेट है और मेरे को ये पता है कि मेरे प्रोडक्ट में मुझे एवरेज सेल जो है वो 10,000 की रेट से मिलनी चाहिए। तो दैट 20 into 10,000 is that 2 lakh rupees is what you are targeting as a monthly sale। उसमें आपने फिर अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, उसमें वो 2 लाख सेल है भाई। सेल में फिर आप कहोगे कि यार ये 2 लाख की सेल है, लेट्स से मेरे प्रोडक्ट में मुझे 10% मार्जिन मिलता है, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज समथिंग क्लोज टू मार्जिन, माय मार्जिन बिकम्स इज 20,000। अब मुझे इसमें अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं कि मेरा रेंटल कितना है, मेरे सैलरी एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरे ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने हैं, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हैं, वो आप निकालोगे। अपने जितना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, सब जितने आपके बिल, उसके बाद आप अपना टैक्स निकालोगे, क्योंकि आपने 20,000 में 12% या 18% या 5% जितना भी आपका जीएसटी के हिसाब से टैक्स आ रहा है, आपको वो टैक्स निकालना है। उसके बाद आप बोलोगे कि हाँ ये मैंने अर्निंग हुई। नाउ दैट अंडरस्टैंड दिस, बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले अपने एक्सपेंसेस खड़ा कर देते हैं, यार मैं सैलरी भी अच्छी दूंगा और मैं बिजली का मैं अपने उसमें ये भी करूंगा वो भी करूंगा। नो, you need to first calculate this. If you're earning 20,000, the good business owner will always make sure कि उसका expenses वो 20,000 से कम हो। May or may not in initial stages, let's say कोई भी business start करते हैं ना, तो there are strategies that we define. That strategy depends. So for example, अगर आप there are two ways. Like for example, कि अगर आप ऐसे मार्केट में घुस रहे हो जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर से भरा हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल आईटी सर्विसेज हो गया या ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, तो ये ऐसे बिजनेसेस हैं वेयर देयर इज ऑलरेडी लॉट ऑफ कंपटीशन। सो नाउ द थिंग्स व्हाट दैट कम्स इनटू प्लेस इज कि आप सर्वाइव कैसे करोगे इस सिनेरियो में। सो देयर आर टू वेज ऑफ मेकिंग अ बिजनेस प्लान इन सच सिनेरियो। फर्स्ट इज अ डिस्ट्रप्टिव मॉडल। अगर आप डिस्ट्रप्टिव मॉडल पे जा रहे हो जहां पे कह रहे हो कि मैं पूरे मार्केट का पैसा, मैं पूरे मार्केट का प्राइस ही तोड़ दूंगा, कि भाई मैं कहूंगा कि अगर कोई चीज आज 100 रुपए की बिक रही है तो मैं उसको 50 रुपए में बेचूंगा। एंड दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू नेवर टेक प्रॉफिट इनटू कंसिडरेशन, यू टेक सर्वाइवल इनटू कंसिडरेशन। सर्वाइवल में कैसा हो जाता है कि यू टेक कि भाई आप इनिशियली कितना अपना ऐसा पैसा जो आप इसके सर्वाइवल के लिए डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को अभी तोड़ना है मार्केट और मैं 2 साल तक इसको ऐसे ही चलाऊं एट अ लॉस ऑफ समथिंग 1 लाख, तो मेरे पास इतना रिजर्व अपने पास डे 1 पे होना चाहिए। तो दैट इज वन स्ट्रैटेजी कि भाई आपने डे 1 पे समथिंग 1 or 2 करोड़ रुपीज अपने सर्वाइवल के लिए डाल दिए कि भाई मेरे को लॉस हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मार्केट तोड़ना है। उससे होता है क्या, देखिए वो स्ट्रैटेजी भी कभी काम कैसे करती है कि जैसे आप मार्केट तोड़ दिया आपने, बहुत सारे ऐसे, जैसे आप भी भोपाल में अगर बात करोगे तो ऑनडोर को देख लो, तो ऑनडोर इज समथिंग विच इज ऑन डिस्ट्रप्टिव मॉडल
कि उसने इतना मार्केट तोड़ा, इनिशियली इतने डिस्काउंट्स ऑफर किए कि कस्टमर्स उसके लॉयल हो गए। अब वो लॉयल हो गए तो क्या हुआ कि अब 2 साल बाद अगर अपने रेट भी नॉर्मल मार्केट रेट पे भी करेगा ना, तो लोग उसके पास ही जाके खरीदेंगे, बिकॉज दे हैव दैट, नाउ दे हैव दैट मेंटालिटी और थॉट प्रोसेस की बहुत नहीं, ये सबसे सस्ता तो यही है, इसने तो इतना सस्ता करके रखा है। तो दैट इज डिसरप्टिव मॉडल। एक बार आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल Amazon, फ्लिपकार्ट, दे वर्क ऑन डिसरप्टिव मॉडल। ये इतना डिस्काउंट दे देते हैं आपको कि जब ये बाद में रेट बढ़ाते हैं ना, तो कोई भी आप में से नोटिस नहीं करता कि इन्होंने रेट बढ़ा दिया, और फिर आप मार्केट में जाके पता भी नहीं करते। एंड आई हैव सीन दैट वेरी लाइव एग्जांपल्स कि कस्टमर आके मुझे आंख बंद करके बोलते हैं कि नहीं Amazon तो बहुत सस्ता है, और फिर मैं उनको प्रूव करता हूँ कि नहीं Amazon ने रेट बढ़ा दिया, आपको पता भी नहीं। तो दैट इज डिसरप्टिव मॉडल। आपने कस्टमर का दिमागी वो करके रखा, फ्यूज करके रखा, आपने उनको ये बिलीव करा दिया कि भैया आपसे सस्ता कोई नहीं। Another is the niche model. In niche model, what you do is you only cater to certain small group of customers, और आप सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचते हो। फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स के जो प्रोडक्ट है ना, उनको बेचते ही नहीं, आपने उनको अलग ही कर दिया। बोले नहीं, if they are selling, for example, if they are selling Maggi and noodles, you will start selling Szechuan or something very पॉश। तो वो क्या होगा कि आप फिर एक सर्टन पॉश ग्रुप के, या तो आप बिल्कुल लो इनकम ग्रुप को टारगेट करोगे, या बिल्कुल हाई इनकम ग्रुप को टारगेट, या मिड इनकम ग्रुप को टारगेट करोगे, बट आप एक सर्टन ग्रुप को टारगेट करके बैठ जाओगे, बोलोगे बस मैं यही इन्हीं ग्रुप पे काम करूंगा, मुझे मास नहीं चाहिए, मेरे को कॉम्पिटिटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज माई हाई इनकम ग्रुप और मैं इन्हीं के साथ काम करूंगा। So that is known as niche model. So you need to decide your model on your basis. Niche model always runs on profit, never runs on loss. क्योंकि उसमें अगर आप लॉस पे जाओगे तो आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि आपका मार्केट साइज रिस्ट्रिक्टेड है, आप कभी भी मार्केट नहीं बढ़ा सकते, उसका आपको फिर बाद में कुछ और एक्सपेंशन प्लान सोचना पड़ेगा। आपका मार्केट साइज बढ़ा है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका एंड में आपका प्रॉफिट आना चाहिए, नहीं आएगा तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपके बहुत टफ हो जाएंगे। तो ये वाली बात हो जाती है। So this is how you make your business plan altogether. Anything else that you guys want to know? Manpreet, I hope I have answered your question. Yes, sir. Thank you, Is there sir. any other doubt? Sir, I have a query. Uh-huh. Sir, generally, when you represent a business plan, the more focused area is your revenue model. So, how can we make it effective to present? Like, we are just telling the ways, or we are representing some figures. How can it be more effective? There is nothing much attractive. Your revenue model is your revenue model. उसको बहुत सुंदर नहीं कर सकते आप। That's सब you have to be very true to yourself. कि so for example, what I'm understanding is कि आपको उसको ऐसा शो करना है कि देखो मैं कितना अच्छा अर्न कर रही हूँ, but there is nothing like that. Don't take business to that point where you will show that कि मेरा 100 करोड़ या 1000 करोड़ का बिजनेस है तो ही मेरा बिजनेस अच्छा है। No, not necessary. You need to understand कि आप किस मार्केट को कैटर कर रहे हो, कैसे कैटर कर रहे हो। That is main important point. Lot of people, what they do is they take it very optimistic approach, okay, or very shusha approach. So for example, say if I tell you कि you need to pitch your business to an investor, okay, what will you show? If you start showing these fancy figures, na, they are very smart. They will understand that you are showing false figures. You need to be true to yourself. You need to be very true to your business. See, if you're true to your business will be successful. If you're not true to your business, if you start showing, so understand this. In this competition also, if you are making a business plan just to show it as a good, very attractive figures, fine enough, but will it help you in practical life? No, I will say no, not at all. You need to be very true to with what you are saying. If your business is showing that you are going to earn 1 rupee a month, then be true to that 1 rupee a month. Don't try to show it as 100 crore or 1000 crore a month ki profit aa raha hai. It's just a false figure, and everyone will understand it that you have not done nothing. Even in this business plan, any business plan, if you're very true, then your approaches changes, and that is what matters. So for example, if you are very true to the business plan that you are making, and you're seeing that you are making only 1 rupee a month, you will start thinking differently. But if you are not true to your business plan, you say start showing the 100 crore, you will think, theek hai, badhiya hai. But if you are saying that nahi yaar,
I have studied a lot. Now I'm getting only 1 rupee. Now there's something bad in it. I need to change it. I need to think differently. I need to pursue differently. And then you will start, running your mind. Otherwise, you won't run your mind. You will thought, there was a like very good business plan. Oh, I'm getting 1 crore a month. So wow, I'm the next Jeff Bezos or something like that. That is not true. No? Not everyone can do that. You need to plan. The good part will be if what you guys can work on is make a business plan, understand its product life. If you are earning 1 rupee a month now, you need to see what will be your expansion strategy or exit strategy. Exit strategy is also very important, guys. I forgot that. It's exit strategy. क्या scene होता है कि there are a lot of business which is running, or and there's a concept that behind is कि यार मैं इसको 4-5 years इसको अच्छे से run करूँगा, and in 5 years I will sell it and I will wind it up. So that is also a strategy. And उसमें क्या होता है कि you calculate your exit strategy becomes is कि जैसे ये 4 years में आपने अपना पैसा निकाला, आपने उसको एक certain good reputation पे वहाँ पे goodwill करके एक आपका वो पैरामीटर आता है. That goodwill parameter अभी इतना दिमाग आप मत लगाना उस पर, because that depends of CA calculate करते हैं या investment bankers calculate करते हैं what is the goodwill. तो उसको लेके फिर लोग बाहर निकल जाते हैं. Or even if you are pitching an investor always see exit strategy क्या है आपकी. So what he sees if he's investing in your business, then and when and how he's going to exit your business. Because he's an investor, he's not interested in how you're running your business or your business is going or not. He's invested in his money. He's investing money in your business and he wants certain return out of it. जैसा हम SIP या म्यूचुअल फंड में लगा के बोलते हैं ना कि यार FD में लगा के बोलते हैं कि भाई हमें 7% रिटर्न मिल गया. Same thing he is also thinking in your business कि if I have invested 1 crore, I should get 2 crore out of it and I should wind it. I should get out of it. I'm not interested in your business if your business is running very well. एग्जिट स्ट्रेटेजी का सोच सकते हो आप कि यार आपको अगर अपने इन्वेस्टर को पिच करना है तो यार कि आप उसको ये बता सकते हो कि सर देखो आप हमें अभी इन्वेस्टमेंट हमें इतना लग रहा है, ये हम चल रहे हैं, अगर आप हमको अभी इतना इन्वेस्ट करते हो तो नेक्स्ट 4-5 years आपका पैसा आपको वापस हो जाएगा और आप बाहर निकल सकते हो. या हमें फलाना आदमी टेक ओवर कर लेगा और हमारा टेक ओवर करने के बाद इतना पैसा आपका अपना पैसा मिलकर चला जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा और उसकी वजह से सॉफ्टबैंक जो जापान का था उसको 400% का रिटर्न मिलके वो निकल गया. तो वो दैट इज एन एग्जिट स्ट्रैटेजी. सॉफ्टबैंक ने फ्लिपकार्ट पे पैसा इसलिए डाला था क्योंकि उसको रिटर्न चाहिए था, वो बाहर निकल गया. फॉर हिम दैट रिटर्न वाज अ ह्यूज. तो उसने पैसा लिया और बाहर निकल गया वो. तो दैट इज एग्जिट स्ट्रैटेजी. एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का आप ये सोच सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने बताया था कि 100 साइकिल का आपका टारगेट अचीव होने लगा, देन व्हाट नेक्स्ट. इफ यू आर ट्रू टू योर बिजनेस प्लान नाउ, then you will always be happy to understand कि भाई मेरे को मुझे आगे करना क्या है इसका. मेरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड विद रिटेल स्टोर. नाउ आई हैड 2 options. I could have easily stick with my retail store only कि मैं अपना रिटेल में जो भी मेरा टारगेट प्लान था, जो भी मेरा बिजनेस प्लान था, मैं उस पर स्टिक रहता कि हाँ इतनी साइकिल मेरी बिक्री ना बहुत खुश है. So मेरा प्रोडक्ट साइकिल में आपको बताता हूँ. जैसे मेरा प्रोडक्ट साइकिल में क्या था कि it took me my introduction phase was of 3 years. It took me 3 years to establish myself. But that is in my market और मेरे प्रोडक्ट में इतना टाइम लगता ही है. It takes you 3 years. Any entrant it takes 2 to 3 years to establish himself as a known market का known player. Then comes the growth phase. So once you are into the introduction phase, आप एक certain amount आपकी income बनी रहेगी, फिर आप grow करना शुरू करते हो, expansion. So what I did was when I was in the growth stage, that was the time I started doing the pan India wholesale spare parts, mainly spare parts. I started doing with the spares, all bicycle spares, all bicycle accessories. I started distributing of pan India. I went online. I started selling on Amazon. I started selling on Flipkart. I had a dealer network. I started making my dealer. I started selling dealer network. So that was my strategy. So that was expansion phase I faced. Now what happened was our industry was very stagnant. If you talk about in last decade, our industry is very stagnant.
So there is a nominal growth of 3 to 4% every year. कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती कि 15-20% ग्रोथ होगी, 30% नहीं। तो आई हैड टू थिंक कि अदर देन, तो मैंने होलसेल का चालू किया था। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि कोविड आया, और कोविड के बाद अनफॉर्चुनेटली दिस इज नोन एज एनवायरमेंटल सिनेरियो कि मार्केट हमारा 30-40% बूम किया। तो जब मार्केट हमारा 30-40% बूम किया तो वी वर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक, बिकॉज क्या हो रहा था कि कंपनीज के पास स्टॉक ही इतना नहीं था। दे वर नॉट प्रिपेयर, दे डिडंट हैव द कैपेसिटी एंड दे वर नॉट प्रिपेयर फॉर सच मार्केट साइज, so they were not unable to meet the demand, and that's where, although we were earning good, but my this pan India wholesale business helped me with my this revenue model which you guys are talking about, और revenue model। तो ये एक साइड जो मैंने स्टार्ट किया था Amazon में, या मैंने होलसेल जो चालू किया तो उसने मेरा रेवेन्यू पे एड ऑन हुआ, वो क्योंकि वो भी उतना ही एक्सपोनेंशियली बढ़ा, तो वो एक अच्छा एड ऑन है। नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई एम प्लानिंग फॉर अ पोर्टफोलियो। सो आई एम सेइंग दैट ओके, मैं साइकिल में तो हूँ और मेरा एक सर्टन आज के टाइम में एक्स पर मंथ की सेल भी फिक्स है, मेरा होलसेल पे भी एक सर्टन अमाउंट अब फिक्स हो चुका है। तो नाउ आई एम गोइंग आउट ऑफ माय bicycle industry and I'm planning for a sports industry, which is very related to my industry, so I have a very knowledge about it, so I know कि क्या करना है क्या नहीं करना, और एक मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो पोर्टफोलियो हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि क्या होगा कि अगर कल के दिन मेरा साइकिल इंडस्ट्री में वापस डाउनफॉल आता है तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री विल हेल्प मी विद द सर्वाइवल, एंड अगर स्पोर्ट्स इंडियन डाउनफॉल आता है तो साइकिल इंडस्ट्री विल बी गुड, और अगर इन दोनों कहीं आता है तो कहीं शायद स्पेयर इंडस्ट्री में थोड़ा सर्वाइव कर दे। So this is how you make your business plan, guys. So you need to understand when you should expand. So you should put that thing also in your business plan कि यार मेरे को लगता है कि सर 2 साल बाद मैं इस वाले बिजनेस में ये चीज का एड ऑन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग कोई IT सर्विसेज में हो तो लेट्स से आज आप लोगों ने सोचा कि हम वेब डेवलप करेंगे, तो 2 साल 3 साल आप वेब डेवलपमेंट में IT सोल्यूशन दोगे, बट आप फिर उसमें एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का सोचो कि यार मेरे को 2 या 3 साल में ना एक प्रोडक्ट भी डेवलप करना है, IT प्रोडक्ट, लेट्स से कोई ERP सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, या कोई अदर कोई एक जैसे जूम टाइप का एक प्रोडक्ट डेवलप करना है, विच आई विल स्टार्ट सेलिंग दैट प्रोडक्ट। So this is how you plan your expansion or you plan your growth. So उस चीज पे आप लोग जरूर फोकस करो। Anything else, sir? Excuse me, sir. हाँ सर, हाँ शिवांगी बताइए। Good afternoon, sir. हाँ गुड आफ्टरनून, बताइए ना। Sir, my name is Shivangi. सर मैंने एक आइडिया सोचा है, हाँ सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, एंड मैंने भोपाल में वो चीज़ अभी देखी नहीं है। आई हैव जस्ट थॉट, मैं ट्रैवल करी थी दिल्ली, देन देयर आई हैव सॉ दैट, और वो एकदम से चीज़ मुझे अराइज हुई कि ये चीज़ भोपाल में मैंने अभी कहीं देखी नहीं है। सो सर व्हाट आर द परसेंट ऑफ चांसेस कि अगर मैं ऐसा कुछ बिजनेस अगर सर्विस सेक्टर्स में खोलती हूँ तो वो रन करेगा, इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? आई मीन आपको लगता है आपका मार्केट साइज है भोपाल? सर वैसे मोस्टली तो है सर, क्योंकि सर मैं आपको अपना आइडिया प्रेजेंट करती हूँ। सर मैंने पेट से रिलेटेड सोचा है। जो लोग पेट्स अपने घर पे रखते हैं, स्पेशली डॉग्स एंड कैट्स, तो जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं मोस्टली, जब उनको इमरजेंसी में कहीं ट्रैवलिंग करनी होती है तो उनको काफी डिफिकल्टी होती है पेट्स को कैरी करने में। देन दे हैव टू थिंक कि कोई एक पर्सन को या तो रुकना पड़ेगा, या तो फिर उनकी केयर कैसे होगी, कैसा होगा। तो मैंने ये सोचा है कि जो लोग मैं ऐसा एक वो खोलूंगी जिसमें लोग अपने पेट्स हम लोगों को इन रेंट मतलब लेके जा सके कि आप इनकी केयर करना, उनको कैसा क्या करना है वो पूरा मुझे प्लान बता देंगे, और मैं उनकी सिर्फ केयर करूंगी। उसके बदले उन बिहाफ में मैं उनसे कुछ चार्ज लूंगी, सम अमाउंट बताओ। ठीक है। तो ये सर मेरा आइडिया प्लान था, बट आई डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन इट। वर्किंग ऑन इट इज वेरी सिंपल। शिवांगी, what I understood, मैं तुमको दोबारा पूछता हूँ, if I'm wrong, please correct me, is you are saying कि if you will be keeping other किसी और का पेट आप अपने घर पे रखोगे, okay, you are not making kennel, if I'm not wrong in that, you will be keeping on, है ना? तो what are your thought process, कितने टाइम तक आप रख सकते हो, मतलब एक टाइम पे आप कितने पेट्स रख सकते हो, और कितने टाइम पे छोड़ दो, तो लेट्स से 30 मंथ्स हो गया, लेकिन एक टाइम पे आप कितने पेट्स रख सकते हो?
सर वो तो सब मेरे प्रोग्रेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब स्टार्टिंग तो मैं स्मॉल स्केल से ही करूंगी, आई मीन एट ए टाइम ऑफ 10 to 15 आई गेस। 10 to उसके 15 बाद आप अगर अकेले करोगे? बिकॉज सी, नहीं सर, मैं अकेले नहीं करूंगी। हाँ हाँ, ओके। आई विल बी हैविंग फ्यू ऑफ माय कलीग्स जो मेरी हेल्प करेंगे इन सब चीजों में, जिनको एक्चुअली पेट्स के बारे में नॉलेज होगा, उनको पता होगा कि उनकी कैसे केयर करते हैं। सो उस रिलेटेड में उनको ट्रीट मतलब वो करके। See, again, what with the idea that you're going towards is on the boarding part. Okay. Now boarding आप अपने घर पे करोगे, which is a unique idea. But अगर आपने उसको उसका एक कैनल बना दिया, तो there is already a lot of boarding ideas. For example, मैं आपको बताता हूँ, Pause the Dogs Planet, अगर आपने नाम सुना, if you're not, go and Google it, is in Bhopal only. Okay. इन्होंने एक डॉग रिजॉर्ट बनाया, इट्स अ प्रॉपर रिजॉर्ट। ओके, आई एम अ पेट ओनर, तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि वेन एवर वी हैव टू कीप आवर पेट, वी कॉल देम, उनका एक केनल है और उसमें उन्होंने एक मतलब केजेस बना के रखे हैं, वो आप अपना पेट दे दो, दे कीप योर पेट, दे फीड देम, दे टेक देम फॉर अ वॉक, उनका जो भी फ्रेश होना होता है उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सब करते हैं। गुड पार्ट इज द हाइजीन। उनके साथ क्या है कि उनका हाइजीन बहुत अच्छा है, एंड दैट इज योर फोटे, दैट शुड बी योर फोटे आल्सो। द ओनली गुड पार्ट इज कि आप घर पे रख रहे हो। आई विल से दिस इज अ गुड प्लान, बट इसमें क्या है कि आप अकेले, मेरे हिसाब से, जो कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आप 3 से 4 डॉग या पेट कोई सा भी ले लो, आप डॉग ले लो, कैट ले लो, कोई से भी 3 से 4 को केटर नहीं कर पाओगे एक टाइम पे। तो आप अपने घर पे 3-4 मैक्सिमम रख सकते हो, उससे ज्यादा अगर आप रखोगे तो आप फिर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दोगे, उनकी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दोगे। दिस इज वेरी सेंसिटिव एरिया, क्योंकि क्या होता है कि जो भी पेट ओनर होता है वो अपने पेट को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है। तो वो क्या है कि अगर वो आपको दे रहा है तो ही विल क्या कहते हैं कि ही विल मेक कि भाई आप उसको टाइम पे दो, टाइम पे उसको खाना दो, सब टाइम पे होना चाहिए उसका। बिकॉज व्हेन ही कम बैक, ही विल व्हाट ही विल सी इज कि उसकी हेल्थ कैसी है, उसका कोट कैसा है, अगर डॉग है तो उसका कोट कैसा है, वो कितना अपसेट है, कितना एक्साइटेड है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि दिल्ली में मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व की है वाटर से, तो मैंने उनको भी देखा है जो लोग कर रहे हो 3 to 4 पेट्स। आई कैन गिव यू एन आइडिया, आप इसको ऐसा कर सकते हो कि आप उसका एक पोर्टल बनवाओ और आप ऐसा करो कि आप ऐसे लोगों को अपने उस पोर्टल में आप ऐसे लोगों को जोड़ो जो करना चाहते हो, एंड यू वर्क ऑन कमीशन बेसिस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल में ऐसे 100 लोग हैं जो कहते हैं हाँ यार हम अपने घर पे रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ हाँ यार ठीक है, अगर आपका कुत्ता जा रहा है 4-5 दिन के लिए, आप मेरे यहाँ छोड़ जाओ, अगर आप कहीं 4 दिन के लिए जाओ, मैं कैटर कर लूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पेट है, मैं कर ही रहा हूँ। तो मैं, अगर आपका एक पोर्टल होगा तो आप ऐसा रिक्वायरमेंट डाल दो कि यू रजिस्टर योर, एंड अगर हमारे पास कोई ऐसा पेट आता है तो हम आपको देंगे, और आप लेट्स से 500 रुपीज चार्ज कर रहे हो दिन का, तो वो 500 रुपीज में से 100 रुपीज कमीशन आपका रहेगा पर डे का, और 400 हमारा रहेगा। इस तरीके से आप एक उसका बिजनेस प्लान बनाओ, तो उसमें क्या होगा, आपका मार्केट साइज बढ़ जाएगा, आपके पास लोग ज्यादा हो जाएंगे ना, तो आप ज्यादा पेट्स को एक बार में केटर कर पाओगे। अगर लोग कम रहेंगे तो आप पेट्स पे केटर नहीं कर पाओगे, फिर आपका एक लिमिटेड साइज हो गया, क्योंकि आपके 3-4 डॉग को एक बार में रखोगे तो वो डॉग कितने दिन के लिए जा रहा है उस पर गेम पूरा हो जाता है। लेट से अगर आप 30 डेज भी ऑक्यूपाइड हो, तो अगर आप उसमें जो अभी मार्केट रेट चल रहा है इस लाइक 400 रुपीज अ डे आप लेते हो बोर्डिंग का, तो 30 into 400 आपका सीधा सीधा वो 12,000 का एक फिक्स इनकम हो गई। वो कमी होगी, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते। तो वो ज्यादा कैसे करोगे, तो आप इससे लोगों को अपने कनेक्ट करो कि भाई तुम भी कनेक्ट हो, तुम भी कनेक्ट हो, तुम भी करो, तो फिर लोग घर पे अगर डॉग को रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं, जैसे मैं खुद बताता हूँ, मुझे भी सेफ लगता है। जैसे मैं भी बाहर गया था तो मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ छोड़ा था रेजन कैनल, क्योंकि वो आप जब हफ्ते भर के जाते हो ना, तो एक फैमिली जो रहती है वो एक पेट को ज्यादा अच्छे से रख पाती है रादर देन ये कैनल्स या बोर्डिंग हाउसेस, बिकॉज बोर्डिंग हाउसेस दे आर टू डू बिजनेस, प्योरली बिजनेस। तो वो रखा है उन्होंने, केज में बंद है, वो उसका हेल्थ है कि नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें। तो आई थिंक जो बिजनेस आइडिया शुड बी ऑन दिस एस्पेक्ट, आप एक पोर्टल बना के ऐसे लोगों को कनेक्ट करो और फिर आप अपना मार्केट साइज बढ़ाओ। आइडिया इज गुड। ओके, थैंक यू सर। या Sir, हाँ बताइए। sir, I have one idea. हाँ हाँ
and I want your help to. I mean, sir, I'm not able to decide my audience target. Okay. I'm planning to launch a key locator. I mean, Sorry, you're planning to launch what? key locator. E-locator. Okay. So many of us have a tendency of keeping a key and we forget, and then we search our key everywhere. So I am trying. E-locator. Okay. हाँ. So I am trying to launch a key locator. मैं ऐसा चाह रही हूँ कि आप अपने मोबाइल से देख सकते हो कि आपकी चाबी कहाँ रखी है, आप भूल गए. तो I was thinking कि उसमें I was thinking that we need just a GPS check जिसको अपन की में लगा सकते हैं, and then through our phone we can search it. So I am not able to. I am thinking कि या तो मैं कोई बिजनेस मतलब जो बड़ी कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, that should be my target audience, or I should make my target audience the one who are using the. Okay, understood. Who are using. समझ गया. You want B2, you are thinking of B2B or B2C. Where should you go? Okay, B2B में जाओ या B2C में जाओ? Yes sir. Understand. So देखिए, this is two different strategies. B2B इतनी जल्दी आप मत करो, because what happens is if you're directly going to B2B, you need to have a lot of internal connection with those companies. और फिर वो बहुत आपको you might get success, you might not get. So the best is to go to B2C. बहुत अच्छा market, बहुत simple market होता है B2C. In that B2C also there are different. This what you are into product. You are of a product. You are making a GPS device and you are making an app. तो आप वो GPS device खरीद लो, आप वो अपने की में लगा दो और आप ऐप इंस्टॉल कर लो. तो आप को जहाँ पे भी आपकी चाबी होगी आपको वो GPS डिवाइस दिखा देगा, आपका फोन दिखा देगा. That is what your business idea is, if I'm not wrong. So you can go with various ways. Like you should go with face to face jobs में कि आप एकदम से पैन इंडिया केटर मत करो. पहले आप अपना एक ऐसा प्लान बनाओ कि जिसमें आपको समझ में आए कि अभी कैपेसिटी कितनी है बनाने की. क्योंकि आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो लेट्स से यू मे मेक 100 पीसेस और यू मे मेक 1 लाख पीसेस अ मंथ. बट उसमें फिर आपका बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पॉकेट साइज कितना बड़ा है. सो फॉर एग्जांपल इफ योर पॉकेट साइज इज ऑफ 100 पीसेस, देन आई थिंक यू शुड टारगेट मार्केट शुड बी विद इन सिटी. इफ अ पॉकेट साइज इज और विद इन डिस्ट्रिक्ट, लेट्स से भोपाल है आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, इंदौर में जाके आप बेच सकते हो. तो उस पे फिर आप पॉपुलेशन साइज देखो. और क्योंकि की इतना कॉमन है कि 20 लाख में तो 20 लाख लोगों के पास तो होगी, या फिर अगर इंदौर की पॉपुलेशन और लोगे तो उतने होगी. सो 100 या 200 पीसेस शुड नॉट बी योर मतलब मार्केट साइज इज नॉट योर प्रॉब्लम. योर प्रॉब्लम इज कैपेसिटी. आप कितना बना सकते हो, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी योर प्रॉब्लम, नॉट मार्केट साइज. क्योंकि आप मार्केटिंग कर लोगे, आपके मार्केटिंग बंदे बहुत अच्छे होने चाहिए. आपको उस पर फोकस करना है कि पहले आपका मार्केटिंग कैपेसिटी और दूसरा आपका मार्केटिंग कितना स्ट्रांग होगा. यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन योर मार्केटिंग. तो आप अपनी एक्सपेंस शीट बनाओगे तो उसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपका मार्केटिंग के जो सेल्स के बंदे हैं वो उनका एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करेगा. और आपकी कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करेगी कि आप कैपेसिटी कैसे बनाओगे. और कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो. तो फोकस ऑन दैट, डोंट फोकस ऑन मार्केट साइज. कोई भी प्रॉब्लम नहीं. आप मार्केट साइज अगर आपने कैपेसिटी 500 की भी तो आपके मार्केट साइज 500 का हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है आपको. आपकी दिक्कत आएगी आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट की. तो वो चीज आपको इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करेगा. और आप कितना अच्छा सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग करते हो, या आप फिजिकल मार्केटिंग कितनी अच्छी करते हो, आपके सेल्स के बंदे कितने अच्छे हैं, वो मार्केट प्ले करेगा. आपके लिए मार्केट साइज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं है. So can I use marginal costing model in this? Sorry, I couldn't hear. Please go ahead. So can I use marginal costing model in this? Marginal cost. Go ahead. So to take out the profit, I mean, I am not getting कि मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि how will I, sell कैसे, मतलब I am not able to separate expenses and the price, sale price. चलो मैं आपको समझाता हूँ इसको. मान लो अभी इनिशियली आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो? Sir, I want to try with 10 products right now.
नहीं इन्वेस्टमेंट पूछ रहा हूँ मैं आपको, आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं? सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट सर 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज, ओके। तो आपने 10 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, उसमें आप इस 10 लाख में आप ये कैलकुलेट करो पहले कि आपके पास आपको एटलीस्ट 2 सेल्स के बंदे रखने पड़ेंगे, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपको पैसे रखने पड़ेंगे, और क्या कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस के ओवरहेड अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस के पैसे रखने पड़ेंगे। तो आप इसमें मतलब एटलीस्ट इनकी सैलरी अलग कर लो पहले फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। तो 3 लाख रुपीज तो आप मतलब मोटा मोटा अलग कर लो। मैं आपको एक बहुत एस्टिमेट दे रहा हूँ, ये जो रेस्ट अमाउंट है ना 7 लाख रुपीज या 6 लाख रुपीज वॉट एवर दैट कम्स इनटू, वो आपका कॉल रहेगा कि आप सेल्स के बंदों को कितना पैसा देना चाहते हो, डिजिटल मीडिया में कितना खर्चा करना चाहते हो। अब ये 6 लाख जो इन्वेस्टमेंट बचा है आपके पास, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो डिवाइस आप बनाने की कोशिश कर रहे हो वो डिवाइस की कॉस्टिंग है 6000 रुपीज, और आप उसको लेट्स से 40% मार्जिन ऑफ में बेचोगे और उसका प्राइस होगा 10,000 रुपीज। अब आप 6000 की जो रुपीज का जो पर डिवाइस है, तो वो 6 लाख का 6000 यानी आप अराउंड 100 पीसेस बना पाओगे महीने का, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड 6 लाख। तो नाउ योर एम शुड बी कि वो जो 100 पीसेस बना रहे हो ना, उसके हिसाब से आप उसका वो आपका एक सेल हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। वो कैसे ग्रेजुअल बढ़ेगा कि जब आप 6 लाख रुपए अपना आपने डाला, तो उसको आपने एक महीने में 10 लाख किया, तो ये 4 लाख एक्स्ट्रा आए ना आपके पास, तो ये 4 लाख में भी आप पूरे 4 लाख नए प्रोडक्ट नहीं लगाते थे, उसको आप डिवाइड करते हो, आप उसमें से 30-40% अपना रिजर्व एंड सरप्लस के रखते हो, और लेट्स से अगर आपको कभी लॉस होता है तो आप उस अमाउंट को यूज करते हो, और रेस्ट जो अमाउंट रहता है उस पर आप अपने कैपेसिटी एक्सपैंड करते हो। ऐसे आप ग्रेजुअली बढ़ोगे, आपकी कैपेसिटी वैसे बढ़ेगी, वैसे आपका मार्केट साइज बढ़ता जाएगा। आपको मार्केट साइज की प्रॉब्लम नहीं, आपको कैपेसिटी की प्रॉब्लम है। अगर आप 10 की जगह 1 करोड़ लगाओगे तो मार्केट साइज फिर आप उतना कैटर कर पाओगे, तो आपकी फिर एक्सपेंसेस भी उसी प्रोपोर्शनली बढ़ेंगे। अंडरस्टूड? ओके। Hello, sir. हाँ So, how can we measure the growth of a service sector? What factors will affect the growth? बहुत इजी सर बताओ। सर एक सपोज सर हम लोग सर मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, हम लोग कस्टमर्स को अपने तो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर से मिलवा रहे हैं, तो सर उसमें सर क्या कैसे कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर हम लोग देखेंगे कि हम लोग फ्यूचर में ग्रोथ करेंगे नहीं करेंगे सर? बेसिक आइडिया। So you are into an aggregator ना? Aggregator वो हो mediator सर। mediator ना aggregator। Yes sir। See mediator you are working from है ना व्योम? सॉरी सर। अगर आप मीडिएटर हो तो कमीशन पे काम कर रहे होगे ना? यस सर। तो इट्स सिंपल यार, the more the client base is, the more is your commission. Then whatever product that you are mediator of, plan start planning कि आप उसको खुद बनाना शुरू करो. Why you want to be a mediator? Initially you can be a mediator. You can directly connect the let's say there's a manufacturer, you're a mediator, you're connecting manufacturer to a customer. You charging commission of it. Very well and good. Start thinking of making it in the future. ओके सर, बट सर हम लोग सर एक चीज सर हम जब कॉस्ट शीट बनाएंगे सर उसकी, तो सर उसमें सर शो क्या करेंगे, लाइक एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे सर उसमें? आपके कॉस्ट शीट के एक्सपेंसेस होंगे, आपका मैन पावर, मेन तो आपका मैन पावर ही है। कमीशन में आप अगर कस्टमर क्लाइंट को कनेक्ट कर रहे हो तो जो भी जिससे आप जो भी आपका सप्लायर साइड है और जो भी आपका क्लाइंट साइड है, दोनों के लिए आपको बंदे रखने पड़ेंगे। एक जो आपके कस्टमर साइड पर देखेगा और एक आपके जो सप्लायर साइड पर देखेगा। उसके बाद उनका ट्रांजेक्शन जो हो रहा है उसको मॉनिटर आपको करना जरूरी है। ऐसा तो नहीं वो आपको चीट कर रहे हैं, कोई बैक अंडर द टेबल ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसका आपको आइडिया नहीं, आपका कमीशन मर रहा है जिसमें, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो आई एम नॉट सी यू डोंट नीड टू स्पेंड मच ऑन मार्केटिंग, सो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन मार्केटिंग, योर प्योरली ऑन मैन पावर। आप पूरा मैन पावर पे काम करो, एंड डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑल्सो कि आप किस चीज का मीडिएटिंग प्रोडक्ट कर रहे हो, उसकी मार्केटिंग आप तो कर नहीं रहे, आप तो बस मीडिएटर आप तो कनेक्ट कर रहे हो दो पार्टीज को, तो आपको मार्केटिंग कुछ करनी नहीं है। आपको मार्केटिंग करनी है तो आपके सप्लायर में मार्केटिंग करनी है कि वो आपको ट्रस्ट करें कि वो आपके थ्रू कस्टमर ले, तो डायरेक्टली कस्टमर ना ले। तो
आपको फिर उनके लिए आपको एक अलग से वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, सेमिनार्स बनाने पड़ेंगे, या एक छोटा सा गेस्ट लेक्चर, ये छोटा सा पार्टी या ऐसा कुछ करना पड़ेगा वीकली या क्वार्टरली बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डॉक्टर्स गेट, वो डॉक्टर्स का सेमिनार होता है, डॉक्टर्स का बहुत सारे आप देखो मीट्स होते हैं, तो वो ये सब होते हैं क्योंकि वो दवाइयाँ की कंपनियां होती हैं, दवाइयों की कंपनी बोलती है आप डॉक्टर्स को पार्टी देती हैं कि डॉक्टर्स उनकी दवाई लिखे क्लाइंट कस्टमर पेशेंट को दें। दिस इज हाउ कमीशन वर्क्स, और फिर उनको कमीशन नहीं मिलता दवाई। दिस इज हाउ यू आल्सो गोइंग टू डू। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर। सर मुझे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना है इन सिटी। एक्चुअली मेरे होम टाउन खंडवा है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चेन बहुत अच्छा है एफएमसीजी कंपनी का। सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स खंडवा में है, जो खरगोन डील करते हैं, बुरहानपुर डील करते हैं और महाराष्ट्र बॉर्डर पूरा डील करते हैं इन धारणी तक। तो सर एक्चुअली क्या बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास उनके खुद के व्हीकल्स नहीं है, लोडिंग व्हीकल्स, तो वो किराए पे लेते हैं। तो सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे कुछ व्हीकल्स लूँ जो छोटे व्हीकल्स हैं, जो लोडिंग लाइक टाटा मैजिक वगैरह। तो सर इसमें ड्राइवर मैं खुद के रखूं या उनके मतलब जो उनके खुद के एम्प्लॉयज हैं उनको दे दूं? आप खरीद रहे हो या आप रेंट मतलब आप व्हीकल खरीदोगे? हाँ सर। ओके, और आपको चाहिए कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को रेंट पे दो? यस सर, पर डे रेंट पे दोगे ना, तो ड्राइवर आपके रहेंगे। और सर ड्राइवर उनके रहेंगे। ओके, ड्राइवर आपके रहेंगे, उसका रीजन है सर वही है कि मैं यही सोच रहा हूँ। जी सर। ड्राइवर खुद रखोगे ना, ये होती है थोड़ी स्मार्टनेस, मतलब स्मार्ट क्या बोल सकते हो, जब आप ड्राइवर खुद के रखते हो ना, तो क्या होता है आप ड्राइवर के थ्रू बहुत सारे ऐसे काम काम करवा सकते हो जो आपकी रेवेन्यू बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको पर किलोमीटर पर रेट देगा। ओके यस सर। या है ना, तो जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि भाई 8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से मैं आपको हर रेट दूंगा, तो किलोमीटर कम ज्यादा करना तो आपके हाथ में, ऊपर एवरेज निकालना आपके हाथ में है ना। आपको मान लो कि आपने किलोमीटर 8 रुपए के हिसाब से दिखाया, क्योंकि आपने कैलकुलेट किया था कि आपका जो एवरेज आएगा गाड़ी का वो 10 किलोमीटर पर लीटर आएगा, लेकिन आपका एवरेज अगर ड्राइवर आपका 13 रुपए पर किलोमीटर निकालता है तो आपका आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आपका ड्राइवर होगा तो शायद आपको थोड़ा लॉयल रहेगा, अगर उनका ड्राइवर रहेगा तो उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है चलो यार उसने क्या अपने को तो 8 रुपए हो गया, तो चलो गाड़ी का एवरेज आपका इतना आ रहा है, वो भी काम करना है। तो उसमें तो ये होगा कि आप गाड़ी के उसका लोगे रेंट, लेकिन मेंटेनेंस आपके हाथ में आ जाता है। मतलब पेट्रोल चलो वो डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा मैं भरवा दूंगा, तो वो भी ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस तो आपके हाथ में ही, तो गाड़ी आपकी, तो मेंटेनेंस आपके हाथ में। प्लस अगर गाड़ी एक्सीडेंटल डैमेजेस हो जाता है तो पुलिस केस आपको झेलना पड़ेगा, ये रजिस्ट्री आपके हाथ में, तो आपने उसको करवाया, वो रजिस्टर कराया आपके नाम पे, बेटर है कि ड्राइवर आपका ही है, बहुत सारे काम आपको बन जाएंगे और बहुत प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, थैंक यू जी। Okay, I hope I have answered all the questions. So yes, I believe it is time as well. We have already crossed. I mean, sir has to go to some other places as well. So this was it. And may I please request Dr. Arjun Murthy, sir, for the vote of thanks, please, sir. Thank you, sir, for your stimulating and inspiring thoughts on much-needed contemplation on preparation of effective business plan, and covering a broad spectrum and its finer aspects in simple and comprehensive manner. It was an unforgettable treat for the students to hear from you on this topic, sir. It was indeed a power-packed and an immersive learning session for all of us here. I, on behalf of the entire Hyper family, convey deep regards and hearty thanks to Mr. Varun Avasthi, sir, for gracing Hyper's e-lecture series initiative 2021 and sharing with us his rich experience and knowledge to match the best in the world. It's a memorable day for Hyperians, students and faculties would cherish this forever. We assure you, sir, to continue to work in the direction of creating knowledgeable managers and worthy citizens for the society. We are also thankful to our college management, Chaitanya Shiksha Samiti, the parent body of Hyper, Group Director Dr. Amarjit Singh Khalsa, sir, Dr. Vaibhav Lavlekar, sir, Chairman MBA Program, Dr. Harsh Sharma, sir, Chairman Career Center, Dr. Mahesh Soni, sir, Chairman Corporate Communication, for organizing such wonderful initiatives.
Thanks one and all present here. Have a wonderful day ahead. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Varun. That was absolutely fantastic. Thanks. Thank you so much. Thank you guys, and have a great day. Okay. Thank you, sir.